हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेस क्लासेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री का अनदर चैप्टर नेम्ड एज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड योर क्लास 11th सब्जेक्ट पर्पज। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी चैप्टर से मिलते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करते हैं स्कोरिंग के लिए। दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से इस चैप्टर की नॉलेज है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आप बने रहे मेरे साथ अपने प्यारे से चैनल वर्सेस क्लासेस में। हम छोटी से छोटी टर्म इसमें क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे और जो भी आपकी डाउट्स और क्वेरीज होंगी यहाँ पे उसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट we'll start with the introduction of the chapter. Introduction. Introductions, it means the what are the main points and the factors discussed in this chapter. आपने कौन कौन से टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और एज वेल एज आपके एंट्रेंस में हेल्प करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट our first point is chemical bonding. Chemical bonding and cause of chemical bonding. क्या cause है? ठीक। Second we will discuss about the types of bonding. Types of bonding. Next we will discuss about the complete explanation of ionic bond, ionic bonds and its favorable conditions, favorable conditions. Then we will discuss about the lattice energy, lattice energy also is called Born-Haber process. Next we will discuss about the bond parameters. Bond parameters. Bond parameter included with bond length, bond energy, bond angle and bond strength. Another small topic to discuss about the dipole moment and resonance. Next we will go theories of chemical bonding. Chemical bondings. So what are the theories included in this chapter? The first one is valence bond theory, VBT. It stands for valence bond theory. Valence bond theory. Second is VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। Important theory is MOTH. It means molecular orbital theory. Molecular orbital theory. ठीक। And another term
इज इंपोर्टेंट टर्म्स थ्योरी में कंसीडर करें ना, तो उसका नेक्स्ट एक बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन नाउ इज द थ्योरी, इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. सो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे आफ्टर बीबीटी. देन विल डिस्कस अबाउट द वेस्पर थ्योरी एंड मॉथ. ठीक, ये आपका हाइपोथेटिकल प्रोसेस है. ठीक, एंड द लास्ट वन क्या हो जाएगा, नाइन्थ जो इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So these are the major topics and the concept we will discuss in this chapters. So will helps to, so these are the scoring points. Also you know about these are the scoring points. So we will start with the chemical bonding and cause of chemical bonding. So we will start with our first topic is chemical bonding. Chemical bonding. What is chemical bonding? Chemical bonding होती क्या है, हम उसको कैसे प्रेफर करते हैं? How we will start with chemical bonding. तो डिफाइन करते हैं chemical bonding को, the attractive force of an atom, ion or molecule in which they held together to form a chemical species called chemical bonding. Clear? So it is the definition of chemical bonding. What is chemical bonding? Is the attractive force, वो force of attraction in which atoms, ion and molecules are combined together with the force of attractions and to make a chemical species is called chemical bonding. So what are the conditions? Two conditions how the atoms are combined. The first is an atom have higher energy than molecule. मॉलिक्यूल से ज्यादा एनर्जी होती है एटम्स पे. ठीक, एंड द सेकंड फैक्टर्स टू गेट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, to get stability the atoms are form a chemical bond. क्लियर? देखो उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं. तो आपका एग्जाम्पल कैसे है, देखो आपके पास एक एटम है ए एटम एंड ये आपका दूसरा एटम बी. It is the nucleus of atom A and B, and these are the electrons of atom B and atom A. So how the atoms are combined together? By the force developed between the atoms. कौन सी force है? Attractive force. So electrons of A attract nucleus of B. Electron of A, nucleus of B attract together. So attraction force is this. Attraction हो रहा है. Nucleus of A, electron of B, nucleus of A and electron of B, they are also attract together each other. ये भी अपने आपस में attraction develop करेंगे. ठीक, and also
the electron of A and electron of B, electron of A and electron of B are repelled to each other. Repelled to each other. Also the nucleus of A and nucleus of B repel to each other. So when two atoms are combined, two types of force are generated. कौन कौन सी फोर्स होती है? अगर हम फोर्स को ऐसे दिखाते हैं, ये आपकी होगी अट्रैक्शन फोर्स. Attraction force. Then you will show this type. This force is called repulsion force. Repulsion force. So now we find that where the attraction force is developed. कहाँ कहाँ पे आपकी attraction force generate हो रही है? तो देखते हैं हम nucleus of A and electron of B, nucleus of B and electron of A, they shows attraction force. Attraction force. So ये देखो एरोस दिख रहा है ना, ब्लैक एरो से, क्लियर. एंड nucleus of A and nucleus of B and electron of A and electron of B, they shows repulsion force. Repulsion force. So the chemical bond now takes place when, so the chemical bond takes place when the force of attraction overcomes force of repulsion. Proper visible है? When force of attractions overcomes into force of repulsion, it means the attraction force is greater than is repulsion force. Repulsion force से ज्यादा है. Then the chemical bond formation. So it is the condition of chemical bond formations. जब आपकी attraction force is greater than the force of repulsion, then the chemical bond takes place. So it is called chemical bonding with the help of a two condition. The first condition is this and second condition this. So it is a definition of chemical bonding and the condition, and with the help of example we explain that here. For the proper explanation we discuss about the graph. This is how the atoms are combined together and why atoms are combined together. So explain with the graph. The graph between potential energy and distance. Potential energy, ये ऊपर को आपका है potential energy, increasing potential energy, ठीक. और ये आपका हो जाएगा r, distance ग्राफ. तो हम इसको डिस्कस करेंगे, r को और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को डिस्कस करते हैं. इसको प्रोसेसर कर लेते हैं, ठीक. ये हो जाएगा r, ठीक है. यहां लिख लेते हैं इसको r, डिस्टेंस. क्लियर. सो एट अ पॉइंट व्हेन द एटम्स आर एट इंफिनिटी, अगर दोनों एटम इंफिनिटी पे हैं, देयर इज नो बॉन्ड्स, नो केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम. जब दो एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स these are the two isolated gaseous atom which cannot be influenced by each other. ये दोनों एक दूसरे influence नहीं है. So no chemical bond takes place. But when the force of attraction generate between the two molecules, so that the distance between the atoms are going to decrease, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगी. So that the force of attraction increase हो रही है.
सो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा इस तरह का बनेगा, यहाँ पर ग्राफ गड़बड़ हो गया है ये। सो इट इज द ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस व्हेन द एटम्स एंड इन्फिनिटी, तो आपका एनर्जी इज मैक्सिमम रिपल्शन, रिपल्शन ग्रेटर, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। व्हेन द एटम्स आर कम्स टू नियर, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप एंड द एनर्जी इज डिक्रीजेस। यहां पे कौन सा है, अट्रैक्शन फोर्स इज ओवरकम्स टू रिपल्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है, तो एटम्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो आफ्टर एट अ पॉइंट द एटम्स आर गेट बॉन्डेड टुगेदर, अब दोनों आपस में मीट हो गए। तो ये पॉइंट जहां पे ये बॉन्ड हो गए हैं, अब इस बॉन्ड को नीचे मीट करते हैं, ये पॉइंट जहां पे आपका ये दोनों मीट कर गए। सो इट इज, सॉरी थोड़ा सा ग्राफ में, this is a point where atoms combine together, chemical bond is formed. So in that case attraction force equal to repulsion force, the force of attraction equal to force of repulsions। और से यहाँ पे attraction force equal to repulsion force, so that chemical bond takes place। केमिकल कब बनता है, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है देन रिपल्शन फोर्स है। व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, सो दैट द रिपल्शन फोर्स इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स, दोनों इक्वल होती हैं। सो इन दैट केस द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। बट आफ्टर व्हेन द एटम्स कम्स नियर, अगर और नियर आ जाते हैं, और ज्यादा नियर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ पे आपकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमेन करेगी, सॉरी रिपल्शन फोर्स ज्यादा डोमेन करेगी ऑन अट्रैक्शन फोर्स। सो द एटम गेट फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो रिपल्शन फोर्स जनरेट होगी। सो एट अ पॉइंट वेयर द अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स आर इक्वल टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड द एनर्जी which is called bond energy। so this is called a bond energy of chemical bond, ये कहलाती है केमिकल की बॉन्ड एनर्जी। एंड द डिस्टेंस ऑफ वेयर द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ये आपकी कहलाती है बॉन्ड लेंथ। इट मीन्स द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ अ बॉन्डिंग एटम, दोनों एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। सो प्रॉपर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एटम थे एक्साइटेड स्टेट में थे, सो दे आर सेपरेट टू ईच अदर। जैसे जैसे पास है तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपकी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है। एट अ पॉइंट व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्शन फोर्स, द बॉन्ड इज फॉर्म। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है आपका, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। अगर हम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। सो in that case the force of attraction equals to force of repulsions, and after then again the force of repulsion is increasing, overcomes to force of attraction, and the atom get separate to each other। so this is the actual way how the atoms are combined together, कैसे combined होते हैं। this is the graphical presentation and this is the conceptual explanation of combination of chemical substance which is called chemical bond। राइट डाउन करें। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो नाउ द कंडीशन ऑफ chemical bond formation।
कौन कौन सी कंडीशन होती है, कब कब केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है। फर्स्ट कंडीशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction is overcomes to force of repulsion. Clear? Second, bond length. Bond length. The minimum internuclear distance of an atom to get bonded together. Is called bond length. एक मिनिमम डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तो देखो, ये आपका एक एटम, व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर, सो द डिस्टेंस बिटवीन, ये इसका न्यूक्लियस है, सो द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्लियर? ए एंड बी, सो दिस इज कॉल्ड अ बॉन्ड लेंथ। थर्ड फैक्टर्स इज बॉन्ड एनर्जी। The amount of energy released when chemical bond is formed is called bond energy. So this is the whole concept related to chemical bonding. Chemical bonding क्या है, कैसे फॉर्मेशन होती है, and what are the favorable conditions to explain the chemical bond formations. कैसे आपके chemical bond formation होते हैं। Note down करें, then we will discuss the next topic, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? सबके समझ में आ रहा है? बढ़िया। सो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और अदर टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के। यहां पे लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू द combination of the atom together, the chemical bonds are classified into two classes. First, the first is called interatomic बॉन्ड, जब बॉन्ड एटम एटम के बीच में फॉर्मेशन हो। एंड सेकेंड इज इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। Intermolecular bonds. Interatomic bonds are further classified into four classes. First is called covalent bond. Covalent bond जो आपने 9th में डिस्कस किया था कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर में। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था एंड इसके टाइप्स पढ़े थे, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। वो आपने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस। ठीक। सेकेंड इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड।
electrovalent bond. This bond also known as ionic bond. Ionic bond. तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक. नेक्स्ट बॉन्ड इज मेटालिक बॉन्ड. metallic bond. And the last one is coordination bond. Coordination bond is a type of a covalent bond. Now according to IUPAC, this bond is a part of a covalent bond. अब हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड के पार्ट के टाइप में स्टडी करते हैं. बट क्लासिफिकेशन था तो मैंने इसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ इंटरएटॉमिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी है. दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में. क्लियर. नाउ द अनदर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स. सो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लास. तो फर्दर 2 क्लास में डिवीजन करते हैं. ठीक. डिवीजन करते हैं. एक आपको हो जाएगा फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो 2 टाइप्स. फर्स्ट आपको होगा इंटरमॉलिक्यूलर H bonding, and second is intramolecular H bonding. जिसको हम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे. होल एक टॉपिक है पूरा इसका. आपका 45 मिनट्स, हम 40 मिनट्स का पूरा डिस्कस करेंगे कंप्लीट. ठीक. नेक्स्ट अनदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इज कॉल्ड वंडरवॉल. bonds. Yeah. So Vanderwaal bonds are classified into 5 classes. फर्स्ट आपका है डाइपोल फोर्स. डाइपोल बॉन्ड्स. इसको हम बोलते हैं कीसम फोर्स. क्लियर. द सेकेंड इज डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. ये बॉन्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, दैट इज कॉल्ड डिबाई फोर्स. Another is IDP and IDP. Induced dipole and induced dipole force is called London force or dispersion force. Three classes of chemical bonding, and these are another types, 4th and 5th. Fourth is called iron IDP and iron dipole force. Okay, IDP force and it is force. So these 5 types of Vanderwaal force. But write a note, important note आप डाउन करें. नोट क्या है? नोट डाउन करें. According to NCERT, iron dipole force not a weak Vanderwaal force. जो आपकी आयन डाइपोल फोर्स है वो वीक डाइपोल फोर्स नहीं है. वो समटाइम स्ट्रांग है, कभी आपकी वीक है, तो इसको कंसीडर नहीं करते. और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. और किसी बुक में ये भी जो आपका है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये भी आपकी वीक बॉन्ड में कंसीडर नहीं करते हैं. बट हम एनसीईआरटी की डिफरेंस लेंगे तो एनसीईआरटी में केवल इसी पॉइंट को कहा है आयन डाइपोल फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वीक
फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह रिजेंबल करती है। तो हमने ये लिखना है। तो ये नोट आउट डाउनलोड कर ली, ये नोट कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्वेश्चन आपका आ सकता है विच वन फोर्स इज नॉट अ वीकर फोर्स, तो आप आयन डाइपोल फोर्स मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बॉन्ड? हमने क्लासिफाई किया बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, या इनको डिवीजन किया। इंटरमॉलिक्यूलर आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डेर वाल्स फोर्स। तो व्हाट इज द मेन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? ठीक, तो बेस क्या है? बॉन्ड अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी केमिकल बॉन्ड क्लासिफाइड एज, ये इसकी बेस पर जो क्लासिफाई किया। तो बॉन्ड एनर्जी अगर हम मेंशन करते हैं, देखो जो एक पॉइंट याद रखो, इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड्स है, ये सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ऑल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ये कैसे हैं? वीक। वीक में दोनों है। ठीक, तो जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी है, दे हैव टू बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 42 किलो जूल। 42 किलो जूल से इक्वल या उससे ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग और इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होंगे। क्लियर? अनदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बंडल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, those bonding where the bond energy is equal to in between 8 kilojoule to 42 kilojoule. Bond energy in between 8 kilojoule to 42 kilojoule. It means अगर 42 होते ही आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होगा, बैरियर को टच करती हो 42 में मेंशन होगा। एंड दीज आर द बॉन्ड एनर्जी is less than, the bond energy is less than 8 and equal to 8. So it is different types. ऐसे मेंशन, इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो इस तरह मेंशन कर लेते हैं। ये आपके बैरियर हो गया, बैरियर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका, ठीक, और ये आपके वैन डेर वाल्स फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो क्लियर? यहाँ पे ये आपके कौन से हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये आपके टोटल हो जाएंगे वीक बॉन्ड। क्लियर? वीक बॉन्ड में कौन कौन से आ रहे हैं? वीक बॉन्ड में आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इधर आपके आ रहे हैं वैन डेर वाल्स फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स। क्लियर है? ये वैन डेर वाल्स बॉन्ड, जो वैन डेर वाल्स बॉन्ड है, उनकी एनर्जी कितनी है? भी हमने मेंशन की थी, बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन 8 किलो जूल। बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल टू 42 किलो जूल in between, and strong bonds are the bond energy is greater than 42 kilojoule is bond energy, इससे ज्यादा या 42। so it is the correct explanation of the classification of chemical bond। हम chemical bond को इस वे में classify कर सकते हैं। if the bond energy is less than 8 kilojoule, it is called a van der Waals force। when the bond energy in between 8 to 42 kilojoule, it is called hydrogen bonding। and when the bond energy is greater than 42 kilojoule, then which type of bonds is a interatomic bonds, ionic, covalent, metallic and coordination bond। so it is the classifications of chemical bonding। write down करें, then we will discuss ionic
बॉन्ड।